Good afternoon, and I welcome you students for another important session on acids and bases. Before I begin, there will be some exercises in order to relax our body, and then we will start our session. Sit comfortably on the chair. Be with me, be with me. Are you comfortable? Yes, sir. Your feet should be touching the ground. No chappal or no shoes on the feet. Ground is very useful because when you touch your feet with the ground, it has good healing effect. Sit comfortably, sit comfortably. We'll begin with Bastrika. Bastrika क्या है कि we will inhale up, exhale down. One, two, like this. Inhale, exhale. Inhale 10 times. Okay. Now we can start. One, two, three, start. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Come back. Now, some stretching of the neck. There is some stiffness in the neck. You can see some stiffness is there. Some stiffness because you put a pillow before your seat. Where you are sitting on the chair, what I do, I put a pillow behind my back. What is the reason? What happens? Then your spinal cord is erect. Otherwise, it will bend. It will bend. I will. This is my right hand. Right hand. Push your neck towards the right side. Apply some pressure, and you will experience a stretch in the neck. Hold it. One, two, three, four, five. Come back to the center. Left hand. Left hand. Push your neck to the left hand side. Apply some pressure. Experience the stretch in the neck. Hold. One, two, three, four, five. Release the stiffness from the neck. Stiffness. There is some stiffness, some tension, some pressure is there. To the right, to the left. Neck to the right. One, two. Inhale, exhale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Neck down, up. One. Inhale, exhale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shoulders. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Hands open, close 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotate the two hands here clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. This part of these muscles are less used. So certain exercises are small exercises we can do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hope we have been able to relax our body, loosen our body, and whatever stiffness is there, we are trying to remove stiffness from different parts of the body. Now you have the foot ankles. You will rotate 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5 clockwise. Anti-clockwise, the foot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, come back and relax. We have been able to loosen our entire body, activated the different cells of the body. Some breathing exercises, some breathing will be there. What will we do? We will breathe from the nose, nostrils,
deeply. Inhale from the nostril deeply, and by chanting of Om mantra, we will exhale from the mouth. समझ में आ गया क्या बोला मैंने? बोलो. नाक नाक से सांस लेंगे और फिर मुंह से जो छोड़ेंगे, ओम ओम मंत्र का प्रचार करेंगे. उससे क्या होगा कि वाइब्रेशंस कहाँ से जाएंगी? तुम्हारी बेली जो है, बेली जो स्टोमिक है, बेली से वाइब्रेट होते हुए वो साउंड निकलेगा, आपके सिर तक वाइब्रेशंस जाती हैं, वो हीलिंग होती है, उससे बहुत फायदा होता है. बोलो, समझ में आ गया? बोलो यस और नो. बैठ गए? सिट कंफर्टेबली. स्टार्ट करें? जल्दी बोलो. तो 1 2 3 करूंगा तो फिर स्टार्ट कर दूंगा. ये आपने दोनों जो हैंड्स हैं वो कंफर्टेबली टेबल पे रख लीजिए, लैप्स पे रख लीजिए. क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज. आंखें बंद कर लीजिए. इनहेल. ओ जब ओम करते हैं तो पेट अंदर पिचक जाता है. जितना पिचक सकता है उसे पिचका दीजिए. जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाएगी. एयर अपने लंग्स को पूरा भर लीजिए और चेस्ट बाहर आएगी आपकी, एक्सपेंड करेगी, बेली भी एक्सपेंड करेगी. इनहेल. ओ last time. Inhale. Deep breathing, as much as deep as you can. Om. Come back, sit comfortably, keep breathing, breathe in, breathe out from the nostril now. Fold your hands for prayer and gratitude. Gratitude is very important, very good exercise. We are thankful to the God, we are thankful to the universe for all the things we have in our life. And we are working and doing our best to improve ourselves. Now, slowly rub your two hands, experience the heat energy being produced, healing energy being produced, and gentle massage your eyes and face. Gentle massage, forehead, eyes, neck, chin, nose, ears, and slowly open your eyes with a smile. All right, we are back. Are you back? How are Yes, you? sir. How are you feeling? You will feel relaxed and fresh, and we can focus now. We can focus and concentrate on our studies. Distractions out, negative energies out, and some stress was there. Stress released from the mind and body, and now body is fit. Every part of the body is working. Hands are working, and my eyes can see, and I can write on papers. Then keep your notebooks ready and keep on note down everything, because these notes are very important. They will be used for 10th, 11th, 12th for 3 years, and a lot of questions will be coming in 11th and 12th also from these chapters. They are there again in 11th and 12th, I'm telling you, and all the exams you will give for colleges and medical and other engineering papers. So these notes are very important. We keep them. We are giving recorded videos. Those who have subscribed the channel, and they can press a bell button, so they will get a bell whenever a video is uploaded. That is in your record. Anytime you want to see that video, you can see it, and you don't have to then read the books. You will just see the videos, and you will get all the answers you want. Okay. All right.
Let us begin, students. Last time we have told you what are acid, what are bases, and indicators. And one question was given, which is still on the screen. This question was not completely answered. We have to be careful because there are two types of indicators. I told you the natural indicators. What are the natural indicators? Can you give me name of the natural indicators which is most commonly used in chemistry lab? Which natural Sir, indicator? litmus. Litmus solution. The what happens? It is important. Litmus solution is the most important, and you know it is obtained from a plant which we have given you the name also, lichen. And this litmus solution, what it does, it turns blue acids. What acids do? Acids turn blue litmus, blue color, red. Is it true? Blue Yes, litmus, sir. blue litmus red. It can be paper or a solution. Doesn't matter. We can make a paper of the solution. Dip a paper, and you can get strips of that. Blue litmus is turned red by acids. And then we said bases. What the bases do? They turn red litmus blue. This is known to us. In the question, he says you are provided with 3 test tubes. Dekho, what you have? 3 test tubes. One of them contains distilled water. Test tube A, distilled water. It is distilled water, students. Another test tube is there, B. And other two contain acidic solution. This is acidic solution. Then you have another test tube, students. It contains basic solution. Now you have to identify which is acidic, which is basic, and which respectively. You are given only red litmus paper. But you are provided lead litmus paper. तो ये पेपर है, एक स्ट्रिप है, ये पेपर है रेड लिटमस का. ठीक है, मैं आई कैन ब्रेक देम इनटू मैनी पीसेस. तो आई विल डिप इन दिस नथिंग, डिप इन दिस नथिंग. तो रेड लिटमस क्या होता है? बेस विल टर्न टेस्ट ट्यूब सी or the basic which has a basic solution. What it will do? If I Sir, dip it will turn into blue. blue, तो यहाँ पर ये blue हो गया. ठीक है, तो red litmus is turned into blue. तो अब आपके पास एक ब्लू कलर का भी पेपर बन गया. ठीक है, एक ब्लू कलर का पेपर भी बन गया. ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि टेस्ट ट्यूब सी जो है ये बेसिक सॉल्यूशन है बिकॉज द रेड लिटमस इज टर्न इनटू ब्लू. नाउ आई विल टेक दिस ब्लू पेपर. ये जो ब्लू पेपर है मेरा, तो आई विल डिप इन टेस्ट ट्यूब ए. व्हाट विल हैपन? टेस्ट ट्यूब ए में मैंने ब्लू पेपर डिप किया, क्या होगा बताओ? Sir, nothing will happen. No change. Then I dip the blue paper. फिर मैंने क्या किया? dip the blue paper, dip in test tube B. So what will be the result? It will Sir, turn it will turn into red. red. So therefore, in this way, I can label the 3 test tubes A, B, and C. तो तीनों का पता लग गया कि which test tube has distilled water, which has acidic solution, which has basic solution. All right. Now what we are going to do in chemistry lab, he says that there is an activity which is given in your NCERT book. They are saying collect the following samples from science laboratory. कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कलेक्ट करिए. Put a drop of each of the above solution on a watch glass and test with a drop of the following indicators. In table 2.1, what change in color do you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange solution for each of the following? Tabulate your observation. अब हमने क्या करना है?
कि हमें एक टेबल बनानी है। टेबल बनानी है, आपका सैंपल सॉल्यूशन है, देखो आपका सैंपल सॉल्यूशन है, जैसे पहले HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर देन आई हैव H2SO4, ठीक है, देन आई हैव HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये मेरे को दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग मी दीज। नाइट्रिक एसिड दिया, एसिटिक एसिड दिया, दिस इज एसिड, NaOH इज ए बेस मुझे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस जो इन्होंने मुझे दिया, KOH दिया, और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, इट इज अ बेस, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने सैंपल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 सॉल्यूशंस है मेरे पास। ये सैंपल सॉल्यूशन कितने हैं? 9। अब बताओ कि रेड लिटमस डालने पर क्या होगा HCl में? टेल मी। इट इज एन एसिड। If I add red litmus in HCl, what will happen? Sir, nothing will happen. No change. क्या लिखूंगा मैं? No change. Sulfuric acid, red litmus, sulfuric acid, Sir, no change. no change. Very good, very good. Keep on writing. हमें fill up करना है इसमें पूरा. No change. Acid है, ये सब acid है. Nitric acid क्या होगा? No change. Very good, no change. Acetic acid, Sir, no change. no change. Okay, very good. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल हैपन? रेड लिटमस मैंने डाला है, क्या होगा? कलर चेंज, रेड, Sir, it will turn into blue. ये ब्लू हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Sir, it ब्लू। will turn into blue. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, It will turn into blue. ब्लू। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Sir, blue. ब्लू। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Blue. all answers correct. Okay, now I add blue litmus solution to HCl, what will happen? Sir, it will turn into red. रेड हो गया। अच्छा, यहाँ पे रेड हो गया। I add H2SO4 to blue litmus, Sir, red. वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड, Red. रेड हो गया। एसिटिक एसिड, Red. नाउ ऐड NaOH, No change. नो चेंज। ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, No change. नो चेंज। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नो चेंज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नो चेंज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नो चेंज। वेरी गुड आंसर। नाउ आई एम एडिंग फिनोफ्थलीन। ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स थे, ठीक है। कौन से हैं ये दोनों? लिटमस सॉल्यूशन, ये नेचुरल इंडिकेटर्स। We have told you what are natural indicators. प्लांट्स में से निकले। और ये कौन से हैं? केमिकल कंपाउंड्स हैं, दे आर synthetic indicator which are used in chemistry lab in our course. Very good. फिनोफ्थलीन अगर मैंने ऐड किया एसिड में तो क्या कलर आता है? जल्दी से बताइए। एसिड Sir, में, it will be colorless. ओके, वेरी गुड आंसर, कलरलेस। ओके, फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन एसिड। याद करना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। फिनोफ्थलीन है ये, फिनोल वाला, तो ये कलरलेस होगा एसिड में कलरलेस है। और H2SO4 में Sir, colorless. कलरलेस। एक्सीलेंट आंसर। नाइट्रिक एसिड, Sir, colorless. ओके। एसिटिक एसिड, Colorless. excellent answer. What will happen in NaOH? Sir, it will turn into deep pink. Pink color. Very good. Excellent answer given by Anya. Calcium hydroxide, Sir, deep pink. प्लस पिंक लिख दो। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ड्रॉप डाल रहे हैं ना, एक ड्रॉप डाल रहे हैं, पिंक, ठीक है।
और ये क्या आया? पिंक, पिंक, पिंक। देखो ये हमें याद हो जाना चाहिए, फिनोल्फथालीन जो है वो एल्कली में पिंक कलर देगा और एसिड में कलरलेस, एसिड में कलरलेस और Yes, एल्कली sir. एल्कली में पिंक कलर। चलो Pink. वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेपर में। ओके, अब हमने मिथाइल ऑरेंज डालना शुरू किया, तो एसिड में मैंने डाला, क्या कलर आएगा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज विल गिव व्हाट कलर इन एसिड स्टूडेंट्स? ये देता है रेड कलर, एसिड में रेड कलर। और यहाँ पे क्या बनेगा? H2SO4। सर मिथाइल ऑरेंज तो पिंक और येलो कलर देता है, वो मिथाइल रेड येलो और रेड देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी एक तरीके से वही कलर दिखता है, रेड टाइप जिसे हम कहते हैं, ऑरेंज भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा रेड की तरफ है, ऑरेंज भी कह सकते हो, ठीक है। ऑरेंज जो है वो रेड की तरफ होता है। ओके, इसमें क्या दिखेगा? मिथाइल ऑरेंज में मैं जब डालूंगा सेम, आप इसको रेड लिख दो, थोड़ा रेड की तरफ आ जाएगा, और ये ऑरेंज जो रेड सा दिखता है हमें। और व्हाट विल हैपन इन बेस? सर येलो हो जाएगा। यहाँ पे ये येलो दिखेगा, ये क्या दिखेगा? येलो। व्हाट विल बी द कलर? येलो। तो येलो, येलो। तो हमने ये जो एक्टिविटी की, इससे कंक्लूजन क्या निकला? वो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस। क्या क्या आपने एक जो जो एसिड्स होते हैं, दे विल टर्न ब्लू, लिटमस रेड, ठीक है, पहला कंक्लूजन ये निकला। सेकंड, बेसिस जो है व्हाट दे डू, दे विल टर्न रेड, लिटमस ब्लू। इतना तो हमें याद हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। जो फिनोल्फथालीन है ये याद करना है, फिनोल्फथालीन इज कलरलेस, कलरलेस इन एसिड्स। एंड बेसिस में क्या होता है फिनोल्फथालीन? पिंक कलर, पिंक कलर। फोर्थ कौन सा यूज किया यहाँ पर? मिथाइल ऑरेंज। जो आपकी बुक में लिखा एनसीईआरटी में उसी को यूज कर लो, कोई बात नहीं, जो कलर उसने कहा। अगर उसने ऑरेंज कहा तो ऑरेंज ही यूज कर लो, और अगर रेड, रेड और ऑरेंज में का ज्यादा फर्क नहीं होता, वैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स को। तो देख लो कि उसमें क्या कौन सा लिखा था, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में उसने जो कलर लिखा उसी को यूज कर लो, ऑरेंज या रेड, ठीक है। तो वो कलर आ जाएगा आपके सामने। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये इन एसिड, इन एसिड्स कौन सा कलर देता है? ये बोला ऑरेंज है, ऑरेंज है या रेड टाइप है। और मिथाइल ऑरेंज बेस में कौन सा कलर देगा? येलो कलर का हो जाएगा। तो वी कैन टेस्ट, इफ आई गिव यू अ टेस्ट ट्यूब एंड टेल यू, आस्क यू अदर इट इज एन एसिड और बेस, क्या करोगे? तो एक ड्रॉप लोगे और उसमें आप फिनोल्फथालीन डाल देना, तो कलर चेंज से पता लग जाएगा कलरलेस है या पिंक है। मिथाइल ऑरेंज डाल देना, देन आल्सो वी विल नो वेदर इट इज ए एसिड और ए बेस। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ठीक हो गया? समझ में आया इंडिकेटर का क्या यूज है? तो ये दिस क्वेश्चन दे विल आस्क व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? by the color change they will tell you whether the given solution is acid or a basic, that's all। तो यहां तक हम कर सकते हैं, एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमने कर ली। अब अनदर एक्टिविटी वो कह रहा करेंगे हम, अनदर एक्टिविटी में क्या करेंगे? टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग with some strips of clean cloth,
tie up with bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. अब बताइए कि why these cloths can be used for testing acid and bases. What type of indicators are these? What type of indicators are these? Tell me. What we call these indicators as? कौन से हैं ये indicators? Olfactory. Yes, sir. Olfactory indicators. तो we have shown you in a table कि acidic medium में क्या होता है कि they have the smell or they lose the smell. In acids क्या होता है? So they retain the smell. They retain the smell. और in base क्या हुआ था? So they lose their smell. Very good answer. They lose the smell. Excellent. अभी पता लग गया फिर तो बहुत अच्छा, तुम्हें आ गया सारा, बहुत जल्दी आ गया. Very soon you learnt everything. Take 2 of these cloth strips and check their order. तो ऑर्डर आप चेक कर लेंगे उनके, पता लग जाएगा. Keep them on clean surface and put few drops of dilute HCl solution on one strip and another few drops of NaOH on another. क्या होगा कि अगर मैंने HCl ऐड कर दिया, अब इसमें नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ठीक है. नंबर 3 में ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, क्लॉथ स्ट्रिप्स, ये मेरी क्लॉथ स्ट्रिप है स्टूडेंट. इसके ऊपर मैंने HCl ऐड किया तो क्या होगा बताओ, स्मेल होगी या नहीं होगी? ऑनियन, ये ऑनियंस हैं, ऑनियन चॉप्ड है. ऑनियन का जो स्मेल होता है बहुत वो स्ट्रॉन्ग होता है. विल द स्मेल बी देयर विद HCl? Yes, sir. Yes sir, very good. Chopped onions है, smell. Yes, and if I put NaOH, what will happen? ये dilute डाल रहा है HCl और dilute NaOH, इसमें क्या होगा? लूज कर जाएगा स्मेल, स्मेल लॉस हो गया. अच्छा, rinse both cloth strip with water again and check their order, not your observation. फिर उसने कहा कि इन दोनों को ले लो और इनको पानी में रिंस करके फिर करो तो स्मेल आ जाएगी. इसी तरह टेक सम dilute vanilla essence and clove oil. अच्छा, ये इसका तुम्हें पता है कि वनीला एसेंस मिलता है. क्या मिलता है? वनीला एसेंस. वो एक छोटी सी शीशी आती है, देखी होगी आपने, तो उसकी स्मेल होती है वनीला एसेंस की. इसका क्या होगा कि एसिड में ये रहेगी और बेस में लूज हो जाएगी. और इसी तरह क्लोव ऑयल होता है, क्लोव ऑयल, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं. इनके ऑर्डर चेक करिए एसिड और बेस में. ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute vanilla essence to both the test tube and shake well. Check the order once again and record the changes. Similarly, test the change in order of the clove oil with the dilute HCl and NaOH and record your observations. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे. ये वाला हो गया थर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ हो गया, दिस इज सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट्थ. तो टेल मी कि क्या होगा वनीला क्लोव ऑयल में, क्या होगा इफ आई ऐड HCl? Smell will be retained, and if I add NaOH, it will lose the smell. Same will happen in vanilla essence and clove oil. तो एसिड्स में ये स्मेल को क्या करते हैं? रिटेन कर लेते हैं. एंड इन द बेस क्या होता है? लूज कर. इतना ही याद रखना है एग्जाम के लिए. देखो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है. तो दे आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी. ये आ चुका पेपर में पूछा गया था. तो एसिड में क्या हुआ? स्मेल. Conclusion, what is the conclusion? Smell retain है. Olfactory indicators retain smell with acids but lose smell with bases. Very good answer. Lose smell in bases. बस इतना ही याद रखना है. देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पेपर में भी आएगा. फिनोल्फथलीन कौन सा कलर शो करता है? कलरलेस एसिड में, और पिंक कलर है बेस में. और वो मिथाइल ऑरेंज में क्या है? मिथाइल ऑरेंज है. तो चलो ऑरेंज ही कलर आया एक किसमें? एसिड में. और येलो कलर आया बेस, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज. इस तरह से हमें याद करना है. और ऑल्फैक्टरी का अगर पूछ लिया तो इतना दिमाग में है
कि कौन कौन से हैं, उसने पूछा था व्हाट आर दी पॉसिबल olfactory indicators which we can use, तो आपने बता दिया वनीला एसेंस, क्लोव, ये जो ऑनियंस हैं ये सब यूज कर सकते हो, और दे विल रिटेन देयर स्मेल इन एसिड, लूज देयर स्मेल इन बेस, लूज देयर स्मेल, इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से, ये नोट कर लो सारा। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं इनको कलर्ड पेन से नोट कर लिया जाए। जो नोट्स बन रहे हैं वो 3 इयर्स तक चलेंगे, 9th 10th 11th 12th 9th के भी चलेंगे, 12th तक जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इनमें से भी आएंगे। इंडिकेटर फिर नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, जो केमिस्ट्री लेंगे सब जगह आएंगे, तो इनको नोट कर लो। वेरी गुड आंसर्स गिवन। ओके, कलर्ड पेन्स हैं हमारे पास। तो अभी तक हमें पता लग गया स्टूडेंट्स की एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और हाउ विल वी आइडेंटिफाई एसिड्स और बेसिस। केमिस्ट्री लैब में HCl है, HNO3 है, NaOH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, these bottles are there. I will use indicators and find out whether this given solution is acid or a base. अब इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं कि कैसे कोई रिएक्ट करते हैं ये। तो टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, सबसे पहले हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर कोई मेटल है तो एसिड और बेस उससे कैसे रिएक्ट करेंगे। अब मेटल तो कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, कौन कौन से मेटल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। मान लो जिंक की एक मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, ये सब मेटल्स हैं। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये जितने भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये मेटल जो हैं हाउ विल दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड विद बेसिस, तो इसके लिए फिर हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे। सो वी विल परफॉर्म सम एक्टिविटी कि व्हाट वी वांट टू सी कि ये मेटल है प्लस एसिड, तो देखना चाहते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। फिर आपने कहा कि ये मेटल है, इस वी विल रिएक्ट दिस विद अ बेस। एसिड कौन कौन से हैं आपके पास, HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, नाइट्रिक, ऐसे सारे एसिड्स हैं। बेस कौन से आपने देखे, NaOH, अभी अभी आपने टेबल्स में देखा NaOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह से ये सब बेसिस हैं। तो विल ट्राई टू सी कि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं कैसे होती हैं मेटल्स की और इन बेस के साथ, तो इनके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे और एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब मेटल्स हैं जिसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा चलो देखते हैं फिर क्या रिएक्शन होने वाली है। अब एक्टिविटी शुरू हो गई। Activity 2.3 according to the NCERT, he says this needs teacher's assistance, set up the apparatus। देखो ये एक apparatus setup हुआ है यहाँ पर। What is this students? Test tube दिख रही है, टेस्ट ट्यूब। Yes, sir. ये होल्ड है, इसको स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसको हमने होल्ड कर लिया। वी आर होल्डिंग दिस टेस्ट ट्यूब इज ए स्टैंड हियर। टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है हमने, जिंक। ये जिंक क्या है, मेटल है, Yes. मेटल डाला है। ग्रेनुअल्स मतलब चलो स्मॉल पीसेस इसके डाले। Small pieces. ओके वेरी गुड, जिंक मेटल के स्मॉल पीसेस हमने डाल दिए स्टूडेंट्स इन दिस टेस्ट ट्यूब। और ये एसिड कौन सा डाला है, व्हाट एसिड आई एम यूजिंग, dilute sulfuric acid। Sulfuric acid. dilute H2SO4 is the acid which we will add in the test tube। देखो this is a cork, with the cork we are closing this test tube and this is a bent tube। ये डिलीवरी ट्यूब है, इसको हमने लगा दिया। जो भी इफ एनी गैस विल बी फॉर्म्ड इट विल पास थ्रू इट। दिस इज अ ट्रफ ऑफ वाटर, इसमें ट्रफ ऑफ वाटर है, क्योंकि अगर ट्रफ ऑफ वाटर नहीं रखूंगा तो गैस उड़ जाएगी हवा में। तो अब द गैस विल बी फॉर्म्ड, इट विल फॉर्म बबल्स इन द वाटर। तो स्लोली स्लोली ये बबल्स हमें आएंगे, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द, टेक अबाउट 5 milliliter of dilute sulfuric acid and add few pieces of zinc granules
what do you observe on the surface of the zinc granules? क्या दिखाई दे रहा है जिंक सरफेस के ऊपर? बबल्स ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। पास द गैस बिंग थ्रू अ सोप सोल्यूशन, ये एक सोप सोल्यूशन है, इसमें से फिर उसके बबल्स मुझे दिखेंगे बाहर आते हुए। वो सोप सोल्यूशन से क्या होगा कि वो बबल्स का वो बन जाता है ना गुब्बारा सोप Yes, का, sir. तो दैट विल बिकम विजिबल। उसके अंदर क्या होगी? गैस। ये ऐसे बबल बनेगा, बबल, बबल के अंदर गैस है। कौन सी गैस है? H2 गैस है, ये बबल है। ओके, वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन सोप सोल्यूशन? सो दैट वी कैन सी द बबल्स, नहीं तो वो विजिबल नहीं होगा। गैस तो इनविजिबल है, गैस का तो कोई कलर नहीं है, Yes, sir. कलरलेस है, तो फिर हमें दिखेगी नहीं। हाइड्रोजन गैस जो है इट इज कलरलेस, तो फिर बबल्स के कलर हमें दिखेंगे। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या, व्हाट विल वी ऑब्जर्व? Sir, it will burn with a pop sound, which proves that it is hydrogen gas. It will burn with a pop sound. It shows that the gas evolved is hydrogen gas. तो यहाँ पर ये कैंडल लेके आए थे, ऐसे पॉप साउंड हुआ, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स एंड आर द ऑब्जर्वेशन सेम और डिफरेंट? अगर मैंने डिफरेंट एसिड्स लिए तो क्या वो पूछ रहा है कि आपको सेम ही चीज दिखाई देगी या नहीं? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? Sir, it will be same. इट विल बी सेम, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेंगे, और जो Yes, वीक sir. एसिड होंगे दे विल प्रोड्यूस लेस गैस। तो बबल्स निकलेंगे सभी में हाइड्रोजन गैस के। तो ये जो रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स, व्हाट इट शोज, मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ये एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, एक साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बन गई। The metal combines with the remaining part of the acid, forms a compound. Is compound what we call salt. Thus, the reaction of metal and acid can be represented like this: that metals react with acid, and what happens is the gas is evolved. Gas is evolved. अगर मैं ये कहूँ कि ये ZN था, this was solid. It is reacted with HCl और H2SO4 और H2SO4, ये aqueous है, तो आपका क्या बन गया? ZnSO4 and H2 gas. That is what you are testing. तो ये हाइड्रोजन जो थी इसको डिस्प्लेस कर दिया किसने? मेटल ने। मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो ये जो हाइड्रोजन थी इसने इसको निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हो गया डिस्प्लेस। यहां से भी ये करता तो ये ZnCl2 बना देता और फिर H2 गैस निकाल देता, डिस्प्लेस कर देता हाइड्रोजन को। और राइट, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ और निकालेंगे हाइड्रोजन गैस। यू कैन टेक डिफरेंट एसिड्स। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया? प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेट जिंक इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सेम रिएक्शन है वही। अब ये व्हाट वी विल डू, एसिड नहीं, वी आर नॉट एडिंग एसिड, वी आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फिर वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। व्हाट वी ऑब्जर्व, take few pieces of zinc, add 2 milliliter of sodium hydroxide and warm the contents. Repeat the rest of the steps and record your observation. So again you will find hydrogen gas is evolved when you add NaOH. Students, एक strong base है, this is a strong base, तो NaOH plus Zn ये salt बन जाता है, this is a salt and this is your hydrogen gas which is evolved. But one important difference is there between acids and bases. All acids give hydrogen gas, but all bases do not give
हाइड्रोजन व्हेन वी यूज जिंक एंड एल्कली। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल। पॉइंट नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉट ऑल द metals will liberate hydrogen gas with NaOH। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑल द मेटल्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन वी यूज एल्कली, व्हेन वी यूज बेस, व्हेन आई विल यूज बेस। तो ये आपकी रिएक्शन हमने दी है, ये साल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या स्टडी किया कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड और बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसलिए कह रहा हूं ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस निकली है। तो गैस कौन सी निकली है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस। नोट कर लो। हाउ विल यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस, वो भी नोट कर लो। नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट, we want to find out how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid। what are metal carbonates student, ये metal carbonates क्या होते हैं? what are metal carbonates? कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3 2-, ये कार्बोनेट है और मेटल के साथ लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे Na2CO3, ये मेटल, दिस इज ए मेटल कार्बोनेट। आई कैन हैव MgCO3, ये भी मेटल कार्बोनेट। तो इस तरह कार्बोनेट्स होते हैं मेटल के साथ वो उन्हें बोलते हैं मेटल कार्बोनेट्स। और दूसरा क्या आ रहा है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो व्हाट इज स्टूडेंट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? कैसे लिखेंगे, हाउ विल वी राइट इट? आपने लिया N मेटल, फिर हाइड्रोजन लगाई, फिर कार्बोनेट लगाया CO3, तो ये हो गया NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये हो गया HCO3-1, इसके ऊपर -1 वैलेंसी है और Na के पास +1 वैलेंसी है, इसलिए ये बना। यहाँ पर Na के पास +1 वैलेंसी थी और कार्बोनेट के पास 2- था, तो आपको यू नो हाउ टू राइट द फार्मूला, इसका फार्मूला बना सकते हैं, क्या बनेगा, Na2CO3। ठीक है, समझ में आ गया कि 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं, एक तो मेटल कार्बोनेट्स एंड दूसरे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। Now we want to see how the acids will react with this। तो इसके लिए फिर हमने सेटअप किया है एक ये एक्सपेरिमेंट। लेट अस सी क्या है। व्हाट इज दिस स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब। कैन यू सी द टेस्ट ट्यूब, ये वाली टेस्ट ट्यूब दिख रही है। इसमें एसिड डाला गया है, डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नीचे क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यू हैव सोडियम कार्बोनेट, कितना ग्राम लिया है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 सोडियम हाइड्रो इन टेस्ट ट्यूब बी। 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं। कौन कौन सी 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ये है टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है। ए में क्या है, 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम Na2CO3 एंड बी में क्या है, 0.5 ग्राम Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एड अबाउट 2 मिलीलीटर dilute टू बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्या ऐड कर रहे हैं, HCl, कितना, 2 मिलीलीटर dilute। What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water, calcium hydroxide as shown in figure 2.2. Record the observation। अभी आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त है, सोच के बताइए क्या होगा। इसको समझ लीजिए, कुछ समझना है तो बताइए। Any doubt you can ask। क्या होगा? If I will add HCl in both the test tubes,
will there be any gas which will be evolved, students? क्या बनेगा? So carbon dioxide gas. अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो आपको क्या दिखने वाला है? आप कह रहे हो सर एक NaCl दिख रहा है और एक H2O दिख रहा है और ये CO2 दिख रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है, CO2 गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और वट ये क्या कह रहा है? इसको किसमें पास कर रहा है? लाइम वाटर में। व्हाट इज लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देख रहे हो, ये दिस टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? CaOH ट्वाइस। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर? ये क्वेश्चन आया था So पेपर। lime water will turn milky. ये मिल्की हो जाएगा। एक्सीलेंट आंसर, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। तो हाउ डिड यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस? You have done burn with a pop sound. And how do we test carbon dioxide gas? Pass it through lime water. तो क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो उसी को ही हम ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है? लेट अस सी द रिएक्शंस। टेस्ट ट्यूब ए, sodium carbonate reacts with HCl aqueous. You will get sodium chloride aqueous, mean it is soluble in water, water liquid, and यहाँ पे गैस निकली है CO2 गैस। टेस्ट ट्यूब बी में क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे भी NaCl बना, यहाँ भी NaCl बना, वाटर बना, दोनों में सेम बना, और यहाँ भी CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पूछेगा पेपर में, राइट द इक्वेशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फार्मूला COH2, ये है हमारा लाइम वाटर। इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म CaCO3। इसका क्या कलर होता है? व्हाइट, इसी को बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो मिल्कीनेस क्यों आई है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO3। फर्दर ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट कि इफ आई पास excess carbon dioxide gas, then what happens? The milky color dissolves. If I pass excess CO2, what will happen? If I pass excess CO2 gas through the solution, then what happens, student? The milky color disappears. ये डिसअपियर हो जाता है। कौन सा? मिल्की कलर। तो वो डिसॉल्व हो जाता है इसके अंदर। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? बिकॉज दिस कैल्शियम कार्बोनेट reacts with carbon dioxide to form calcium bicarbonate. This is calcium bicarbonate. This is soluble in water. This is not soluble in water. Precipitate क्या होता है? जो soluble नहीं होता वाटर में। This is not soluble in water. But this calcium bicarbonate जो बना है स्टूडेंट CaHCO3, ये क्या होता है? ये वाटर soluble होता है। तो when you pass, you will get calcium bicarbonate, calcium dihydrogen carbonate. This is soluble in water. Therefore, what will happen? The milkiness will disappear if you pass excess CO2 gas. ये point important है, इसको note कर लो। ये question, this question has been asked in the paper. ये reaction बहुत important है, they will be asked in the exam. Reaction of sodium carbonate with HCl, reaction of sodium hydrogen carbonate with HCl, and when you pass carbon dioxide gas through lime water reaction, and when you pass excess carbon dioxide gas the reaction. तो ये वाटर में soluble है, तो मिल्कीनेस जो होगी वो चले जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगा। जो लाइमस्टोन होता है आपका, चौक होता है, मार्बल होता है, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म्स होती हैं। All metal carbonates and hydrogen carbonate react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water. तो क्या क्या मिला? ये क्या है? साल्ट।
this is salt, this is water, and this is carbon dioxide. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जाए कि कोई भी आप जब लेंगे मेटल कार्बोनेट्स, यहाँ पे देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट डाउन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट डाउन, नोट डाउन किया जाए स्टूडेंट. रिएक्शन what we are showing, the reaction of metal with acids, the reaction of metal with carbonates, and the reaction of metal with hydrogen carbonates. And how will we test the gas which is evolved? ये important है, this question will be asked in the paper. Important है, important question है, they will ask us in the exam. इसको नोट कर लो, सारी ये रिएक्शन कंप्लीटली नोट की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन. So done. Okay, very good. Next question, how do acids and bases react with each other? एक बेस है, one is acid, one is base. Take about, अब एक्टिविटी क्या है, take about 2 milliliter of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein. क्या होगा? If in NaOH I add phenolphthalein, what color you will get? What is the color of the solution? Tell me. Phenolphthalein gives which color in alkali? So pink color. तो यहाँ पे पिंक कलर का सोल्यूशन बन गया. Add dilute HCl to the drop wise, what will happen? फिर मैंने एसिड ऐड करना शुरू कर दिया, क्या होगा फिर बताओ ड्रॉप वाइज? So colorless. तो अगर HCl का एक ड्रॉप भी ज्यादा हो गया तो कलरलेस हो जाएगा. Why did the color of phenolphthalein change after the addition of the acid? क्यों हुआ? क्योंकि बेस रिएक्ट्स विद एसिड. बेस ने Yes, क्या? sir. बेस रिएक्ट्स विद एसिड, इसका मतलब बेस प्लस एसिड की रिएक्शन हो गई. अभी कौन सी रिएक्शन हुई है, वी विल टेल यू. नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaH टू द अबव मिक्सचर. फिर क्या होगा? फिर NaH मैंने डाल दिया, फिर पिंक कलर आ गया. Yes, sir. Does the pink color reappear? Yes. What do you think? What this has happened? तो एसिड एक्सेस में हो गया तो पिंक कलर गया, बेस अगर हो गया तो आ गया. तो ये रिएक्शंस जो हो रही हैं इनमें क्या हम बता रहे हैं कि एसिड और जो बेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कि यू हैव NaOH स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये एसिड है मेरा HCl. द टू रिएक्ट्स टू फॉर्म salt and water. तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसिड बेस रिएक्शन. तो इसमें क्या बना? salt, water, base and acid. This is called neutralization reaction. Acid neutralizes base. So base plus acid will give salt plus water. Base plus acid will give salt plus water. This is a example of the neutralization reaction. तो इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट्स. So the reaction between an acid base to give salt and water is known as neutralization reaction. In general, I can write this reaction: base plus acid gives me salt and water. होगा क्या? हीट चेंज भी होगी, उसे बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. रिएक्शन में हीट निकली, गर्म हो गया तो उसे बोलते हैं हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, साल्ट एंड वाटर बन गया. तो इस तरह से एक स्टेज पर कलर बिल्कुल खत्म हो गया, फिर एसिड एक्सेस में हो गया तो कलर रीअपीयर हो गया. बेस के अंदर फिनोल्फथलीन का पिंक कलर, एसिड के अंदर फिनोल्फथलीन का कलरलेस. इसको नोट कर लो. तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ. देन वी विल मीट यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंटिन्यू मोर अबाउट दिस. ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और वट एवर questions are there, all questions will be discussed, and make sure you make complete notes
and the recorded video should be with you. Anytime you have doubt, you can listen to these videos and get all answers of the questions which will be asked in the paper, because we are solving all questions in our coming lectures. So, okay then, bye bye. I will see you in the next class. Thank you, sir. Okay.